کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بی بی پاک دامن مزار توسیع منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وعدے کے مطابق بی بی پاک دامن مزار زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا، تزئین و آرائش اور توسیع پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ مزار پر ملک کی سلامتی، استحکام، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرکیٹیکٹ نیر عالم دادا اور ان کی ٹیم سے مصافحہ کیا اور تعمیراتی کام پر شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار کی تزئین و آرائش اور توسیع کے پروجیکٹ کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وعدہ پورا کر دیا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا اس متعلق؟ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ آج بی بی پاک دامن دربار پہنچے، جہاں پر توسیع پروجیکٹ کا انہوں نے باقاعدہ معائنہ کیا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ فوری طور پر بی بی پاک دامن دربار کو زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا جائے۔ تو اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو تعمیراتی کام وہاں پر ابھی مزید جاری ہے اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی دی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ فوری طور پر اس پروجیکٹ کو اب 12 محرم تک جو ہے وہ اس کا دیگر جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزدوروں، سیکٹری تعمیرات و مواصلات، آرکیٹیکٹ نیر علی دادا اور ان کی ٹیم سے مصافحہ بھی کیا اور تعمیراتی کام پر شاباش دی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تزئین و آرائش اور توسیع کے پروجیکٹ کے اعلیٰ معیار کو جو ہے وہ سراہا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ مزار کے تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا گیا ہے اور 12 محرم الحرام تک مزار کا جو بلائی حصہ ہے وہ بھی مکمل کیا جائے گا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور متعلقہ حکام کی دن رات محنت سے مزار کو آج زائرین کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ راستہ کشادہ ہونے سے زائرین کو بہت سہولیات ملیں گی اور ہم طرف میں آسانی بھی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ عام انتخابات کب ہوں گے، الیکشن کمیشن نے بتا دیا۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال کہتے ہیں 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی تو 11 اکتوبر تک الیکشن کرا دیں گے۔ انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر اور نئی انتخابی اصلاحات کے تحت الیکشن کرائے جائیں گے۔ ڈی آر او اور آر او کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے، انتظامی اور جوڈیشل افسران لے سکتے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں یا پہلے تحلیل ہوں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تاہم نئی مردم شماری کی صورت میں حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ لگیں گے۔ کہا انتخابی اصلاحات کمیٹی کو 60 سے زائد سفارشات دی تھی، سفارشات کی باضابطہ منظوری تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کا عام انتخابات ڈیجیٹل مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیوں کے تحت کرانے کا مطالبہ۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم فاروق ستار کہتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن میں 2-4 ماہ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، پرانی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر الیکشن کسی صورت قبول نہیں۔ ووٹر فہرستوں میں یہ بے ضابطگی بالعموم سندھ کے شہروں میں رہنے والے ووٹرز اور بالخصوص کراچی کے ووٹرز کے ساتھ ووٹرز فہرستوں میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگی اور دھاندلی کی گئی ہے، اور پر کراچی کے ہزاروں ووٹرز کی شکایات آئیں کہ ان کا ووٹ اس مرتبہ ووٹرز لسٹ میں نہ ان کے مستقل پتے پر ہے، اس حلقے میں جہاں مستقل پتہ ہے، نہ ان کے عارضی پتے پر ہے، جو عارضی پتے کے حلقے میں نہیں ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انتخابات کے لیے 42.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں 10 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ کمیٹی نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ٹی سے متعلق منصوبوں کا اجرا کر دیا۔ سیمینار سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا آئی ٹی برآمدات کو 20 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں، سرمایہ کار کو 1 ونڈو سے تمام سہولیات مہیا کریں گے۔ اگلے چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے۔ معاشی بحالی کے منصوبوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی سیمینار میں شریک تھے۔ We have to
achieve this target under all circumstances with your outstanding commitment, your support, your hard work, your knowledge and your expertise. Our very respected investors are sitting here. I always maintain that my investor is my master. For that we will roll out red carpet for them and give them in a genuine and in a very sincere fashion all kinds of facilities and support which they require to build this sector in Pakistan. It is the whole of Pakistan strategy, which includes federal government and all provincial governments. And this mechanism has the following portfolios: A, agriculture, mines and minerals, and 4, defense production. And of course, it goes without saying that all these initiatives will lead to our exports. हुकूमत का मीडिया रेगुलेशन से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला। वजारत इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 तैयार कर लिया। चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात कम करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये बिल ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है बल्कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश भी कर दिया गया है और इसमें बहुत सी अहम चीज़ें जो हैं इसमें तरमीम में लाई गई हैं। सबसे पहले तो मीडिया वर्कर्स और जो मीडिया के जो तनख्वाहों का मामला है उसको बाउंड किया गया है फर्स्ट टाइम, जिसमें चैनल्स ने जो वर्कर्स की जो तनख्वाहें वो 60 दिनों के अंदर देना उनका लाजमी होगा और अगर तनख्वाहों का मामला अगर गड़बड़ होते हैं तो फिर सरकारी इश्तिहारात से इसको जो है मुंसलिक किया गया है उसकी बंदी से। उसके बाद जो कंप्लेन ऑफ काउंसिल्स का जो है वफाक और सूबों में जो है वो बनाने का फैसला हुआ है, जहाँ पर मीडिया और दीगर जो प्राइवेट और जो आम शहरी भी उसमें जो है अपनी कंप्लेन बता सकेंगे। सबसे अहम जो चीज़ इसमें आई है वो जो है फेक स्टोरी के हवाले से चीज़ें आई हैं और उसके हवाले से भी तशरीह आई है और उसके साथ जो स्टोरीज़ में जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो अगले का लेने का जो जिसके मुतालिक स्टोरी है उसके हवाले से चीज़ें आई हैं। पैमरा के जो चैनल बंदिश का जो मामला जो आता था उस हवाले से भी इख्तियारात जो हैं उसको भी चेंज किया गया है। पहले चेयरमैन पैमरा का इख्तियार था, अब 2 अरकान और काउंसिल की मंजूरी जो है उस हवाले से लाजमी होगी। जुर्माने का जहाँ तक तयन है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक जो है जुर्माने का जो है चीज़ इसमें अमेंडमेंट की गई है। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जो स्टे ऑर्डर्स जो होते थे किसी भी पैमरा के फैसले के हवाले से वो सिर्फ मुतलका जो सूबे की हाई कोर्ट है वहाँ पर ही ये जो है वो पैमरा के खिलाफ जो है वो जाया जा सकेगा। इसके अलावा जो है दीगर अहम शिके भी इसमें ऐड किए हैं, जिसमें जो पैमरा का जो कानून है उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं इसको जो है बताया जा रहा है कि वर्कर्स के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए और उसके साथ जो दीगर जो मामलात हैं पैमरा की जो दीगर कानून साजी है और जो इक़दामात हैं उनकी जो रेगुलेशंस हैं उस हवाले से जो है वो चीज़ें अमेंडमेंट की गई हैं और अब ये पार्लियामेंट में जो है मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है, कमेटियों में जाएगा और उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनी तौर पर एक जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके हवाले से नई जो रेगुलेशंस हैं वो आएंगी, जो कि बताया अब ये दावा किया जा रहा है कि वो मीडिया वर्कर्स और साथियों के जो है वो हक में ये चीज़ की गई है, जो कि पेंडिंग चल रही थी। पीटीआई के दौर में भी इस पे काम हुआ लेकिन इसको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। साइफर का मामला ओपन एंड शट केस है। साइफर को पब्लिक करने की सजा 14 साल तक हो सकती है। इंक्वायरी को क्रिमिनल कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला एफआईए ने करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया और मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साइफर मामला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस इल्तवा का शिकार हुआ। चेयरमैन पीटीआई को एफआईए ने 25 जुलाई को बुलाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी पे बगैर हुकूमत को सुने और नोटिस किए उस पे स्टे जारी कर दिया। इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया था लाहौर हाई कोर्ट से और ये मामला तकरीबन 6.5 माह से ज़ायद अरसा वहाँ पे
स्टे की नज़र हुआ और पिछले दिनों में ही वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त पड़ी हुई थी वेकेशन ऑफ स्टे की, उसकी बारी आई, सुनवाई हुई, तो बिलाखिर वो स्टे जो है वेकेट किया गया ऑन लीगल ग्राउंड्स। मीनवाइल ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतलका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे लेके वापस वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखते रेलेवेंट जगह पे, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने। इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पर किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए। आज तक हमने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये नहीं देखा होगा कि एक नुक्ता उठाया गया और उस पर बगैर बहस तमहीज के, बगैर दूसरा मौक़िफ़ सुने, बगैर इवन जो उस वक्त की हिज़्ब इक़्तिदार थी उसके किसी दूसरे रुकन से उसकी तस्दीक कराए बगैर डिप्टी स्पीकर ने वो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो कोई 1.5 मिनट के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया और आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक में मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करते हैं, माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह के आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी फरमाया है, कानूनी तौर पर क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं साइफर को छुपाने या मंजर आम पर लाने के हवाले से, जो आवाम के साथ शेयर करने के हवाले से? तो एक ऐसी चीज थी जो कि फिर हाई ट्रीजन में भी मामला आता है और बाद में इन्होंने फिर एक और चेंज की अपनी पोजीशन और कहा कि नहीं, ये तो कुछ और लोग थे, अमेरिका का हाथ नहीं था, तो ये एक स्टेटमेंट दे दी। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको बड़ा धचका भी लगा और फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस स्टेटमेंट के जरिए, इस प्रिटेक्स्ट पे ओवरथ्रो करने की कोशिश की और फिर इन्होंने अदालतों को मिसलीड करने की कोशिश की और ये सारा प्रोसेस जो था इवेंचुअली इन्होंने अदालतों के जरिए फिर हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट है, एक वैलिड गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई थी पंजाब में, उसको इन्होंने गिरा दिया और ये सारा तसलसल के साथ फिर इन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ी, जबकि अपना इनका बयानिया कुछ और था। इनको चाहिए था सीधा अपोजिशन में बैठते, तो ये इतना सारा खिलवाड़ करने के बाद फिर अब वो आजम खान साहब की भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं और आजम खान की स्टेटमेंट जो है वो बजाते खुद, उसको तो एक स्टेटमेंट उनकी है, लेकिन उसको का मुवाजना अगर बाकी तमाम शहादतों से करें, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी सामने रखें और बहुत सारा डायरेक्ट एविडेंस भी सामने रखें, तो उसमें तो अब कोई अमर माने नहीं है कि हम कह सकें कि जी इन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी गैर आईनी और गैर कानूनी और ये ऑफेंसेस जो हैं ये नहीं किए। बिल्कुल ये इसमें बज़ाहिर ये सब कुछ साबित हो रहा है और ये बड़े सीरियस इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। इरफान कादिर साहब आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने चेयरमैन PTI की अहलिया को साइफर केस में शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, साइफर बुशरा बीबी से बरामद ना हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू कर रही थी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आजम खान अकेले नहीं, साइफर पूरे गैंग की साजिश थी। इक़्तिदार की डोरियां बुशरा बीबी हिला रही हैं। बुशरा बीबी पीरनी के किरदार के साथ साथ उन्होंने वजीरनी का किरदार भी निभाती रही। तो जब वो पीरनी और वजीरनी दोनों किरदार यकजा होते हैं तो फिर वो ज़ौज जो है वो फ़ौज पे हमलावर होने की प्लान करती है और ज़ौज का फ़ौज पे हमलावर होने का जो माइंडसेट था वो इस साइफर कहानी के साथ जुड़ा। वो सारा ड्रामा और वो तमाम जो कागज़ लहरा लहरा के सिकंदर आज़म जो अपने आप को समझते थे, वो ये फतूहात का सिलसिला कि भी मैं अवाम को, मासूम ज़हनों को उनके साथ खिलवाड़ करके, उनको वरगला के, अपनी ख्वाहिशात का कैदी बना के मैं पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हुक्मरानी का जो एक ख्वाब है उसकी तकमील करूँगा। ये अकेले कोई आज़म खान की ज़ात के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये उस पूरे गैंग की एक सोची समझी वो साजिश थी जो बेनकाब हुई।